Ma'am, am I audible to you? She has joined. निधि हांडा एक बार उनको हाँ वो कर दो आप पोस्ट कर अभी तो मैंने देखा हम्म हाँ पोस्ट कर दो मैम निधि हांडा मैम am I Yes, audible? yes, you are audible. Okay, you have joined. I Okay. have some Thank you, ma'am. problem. I had some problem. Now it is okay. I'm Okay. just sharing my screen. Giving a brief profile of you. So जितने भी आप लोग प्रेजेंट हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर निधि हांडा मैम असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ओके she has promoted she is associate professor in the department of mathematics and stats in Gurukul Kangri University Haridwar. She did her MSc in stats and PhD from Gurukul Kangri Vishwavidyalaya Haridwar. She is a life member of Indian Society of History of Mathematics, the Indian Science Congress Association Haridwar chapter, Jagrati Women's Conference, Haridwar Society, Haridwar, and the organizing committee of Literature Society Haridwar. She has published many papers in reputed national and international journals, and her research area of interest is ancient Indian mathematics, inventory theory, wavelets, and stats. She has published two books named Katyayana Shulabh Sutra and modern mathematical interpretations of its sutras and ancient Hindu mathematics an introduction. She has supervised around more than 5 PhD research scholars. So she is discharging services to women empowerment, health and hygiene and empowerment related projects at Kangdi village, where organization is running a mother and child care and daycare center for the old. So ma'am, the social work welcome for this session. Over to you, ma'am. Thank you, Sonia. And namaskar to to the team organizers of this national workshop on new dimension in Vedic mathematics. Am I audible? मैम यस मैम यू आर ऑडिबल लेकिन आवाज आपकी 2 बार आ रही है कोई और आपने डिवाइस ऑन की है शायद Okay. ओनली वन डिवाइस डिस्कनेक्ट करो यहीं पे बैठो. Namaskar to the organizers of the team of National Workshop on New Dimension in Vedic Mathematics. एंड मेनली इस कार्यक्रम को शेप देने वाले प्रोफेसर शिवराज जी, एक्सीलेंस इन. सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम. मैम आपने फोन से भी किया हुआ है शायद ज्वाइन. बंद करो इसको या फिर म्यूट कर दीजिए फोन वाला. म्यूट ही है. यहाँ पे आवाज इको हो रही है. बिल्कुल ऑफ करो. Okay, Professor Shivraj ji and last and not the least Sonia ji. Ma'am, लगातार. Sorry for interruption again. Ma'am, it is not audible properly. There is some problem. Okay, I will again. Audio. So once again, I disconnect and then again I try to connect. Okay. ये लो, करो जरा. मैं लीव मीटिंग कर लेती हूँ. स्टॉप शेयरिंग. इसको लीव कर देती हूँ. मैम आप मीटिंग को रीजॉइन करके देखें प्लीज.
Ma'am, please say something to check Okay. your audio. Namaskar to the organizer of team organizers national workshop of new dimension in Vedic mathematics, and mainly इस कार्यक्रम को शेप देने वाले प्रोफेसर शिवराज जी, सोनिया जी, और आप ऑलरेडी एक एक्सीलेंस इन प्रोग्राम वैदिक मैथमेटिक्स आप चला रहे हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। डॉक्टर भाटिया जी को भी मैं अपना नमस्कार प्रेषित करती हूँ। और अभी अभी तो CCS यूनिवर्सिटी अच्छे से न्यूज में रही, उसके भारी सफलता के लिए, और देश भर में एक A++ के रूप में इस यूनिवर्सिटी का नाम आया। आज का मेरा टॉपिक है, मैं ये स्क्रीन को बंद करना चाह रही हूँ। Mathematics in Shulp Sutras. Existence of mathematics before Christian or before Christ may be referred as foundation of mathematics. Mathematics in Vedas, it was 8000 BC, and mathematics in Indus Valley civilization 8000 to 3000 BC. Pingal and Panini's 3300 BC, and Shulp Sutras 1000 to 500 BC, and Jain mathematics 400 to 100 BC. And okay, now it is voice is clear. Is voice clear? Yes, clear, madam, clear. Okay. In those early years of European intellectual growth, contribution of India were obviously not considered. After Sanskrit studies attracted some European scholars, this situation was changed. In 1875, Thibaut, a Sanskrit scholar with a view to inform the learned world about Indian mathematics, translated a large part of Shulp Sutras. In 1877, Cantor, realizing the importance of Thibaut's work, began a comparative study of Greek and Indian mathematics. Initially, he concluded that Indian geometry is derived from Alexandria knowledge. However, some 25 years later, with greater study, he concluded that the Indian geometry and Greek geometry are related. The process of assigning dates also picked up. Later, Cantor eventually considered a much earlier date to Indian geometry. So I have tried to convey you that till the Sanskrit word, till the foreigners have not studied the Sanskrit text, they have not assigned the importance of our old text. Another interesting study has recently been brought out by Nobel laureate Amartya Sen, the argumentative Indian, in his book. In the chapter on China and India, he mentions several Indian mathematicians and astronomers held position in China's scientific establishment. And an Indian scientist, Gautam Siddharth, who was also known as Scooter in Chinese, even became president of the official board of astronomy in China in the 8th century. In Indian trigonometry was having a major impact on Arabians, and which the previously Chinese were interested in getting the knowledge
from India. Main reason was Buddhism was in particular, and there was a Tantric Vidya also, and in Tantric Vidya there is fascination with numbers also. So all these were reasons that they were attracted with the knowledge, with this Indian knowledge. Further, Sen writes calendrical studies in which Indian astronomers located in China in the 8th century. If we talk about calendrical studies, और हम हमारे पुराने ज्ञान में, हमारे पुराने नॉलेज सिस्टम में, अगर अब हम नई घड़ियों की बात करें तो एक सेकंड को कई सपोज कि 100 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उस समय उन्होंने सेकंड्स के तो मोर देन 100 पार्ट्स डिवाइड किए हुए थे। जैसे कि एक आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि दो सबसे छोटा अगर अंश है उसको परमाणु कहा गया, तो दो परमाणु को एक अणु के बराबर कहा गया, 3 अणु जो है एक थ्रस्ट के बराबर है, और 3 थ्रस्ट एक त्रुटि के बराबर, देन 10 त्रुटि एक प्राण के बराबर, और 10 प्राण एक वेद के बराबर, 3 वेद एक लव के बराबर, और 3 लव एक निमेष के बराबर। और निमेष क्या है? एक पलक झपकने के बराबर का समय। तो आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा उस समय की जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम था, 2 निमेष एक विफल के बराबर, 3 निमेष एक क्षण के बराबर, जिसको सेकंड्स कहा गया। अब हम सेकंड को या मिली सेकंड्स को प्राय हम इतना जानते हैं। और भी चकित कर देने वाली गणनाएं ऋषियों ने उस समय करी, और हमारे टेक्स्ट में उपलब्ध भी है। एक प्राण 4 क्षण के बराबर, 5 क्षण एक काष्ठा के बराबर, और एक 5 काष्ठा एक दंड के बराबर, विच इज इक्वल टू 1 नाड़ी, और एक लघु 24 मिनट के बराबर, 2 दंड एक के बराबर। Excuse me, ma'am, slides are not running. हाँ, मैं स्लाइड्स नहीं। तो इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए या जो इसमें मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेने वाले, मैं एक कैलेंड्रिकल एक्टिविटीज की आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरह से, ये मेरे स्लाइड्स पे नहीं है, इसी तरह से आजकल एक काफी, जब आपको नया नववत्सर शुरू हुआ, चैत्र मास का महीना, तो बहुत सारे फ्लैश हुए, बहुत सारे न्यू ईयर के व्हाट्सएप मैसेजेस, तो जिसमें कि काफी वो 1 अरब और कितने लाख ऐसे इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा। तो सच में वो कोई उसको आप गप नहीं समझिए, आप ये देखो कि एक सतयुग और एक सतयुग, त्रेता युग, एंड देन द्वापर युग एंड कल युग, इनके कितने साल थे। जैसे कि अगर हम सतयुग, कलयुग की बात करें तो 4,32,000 वर्ष ऐसा हमारे टेक्स्ट में उपलब्ध है, ऐसा मिलता है। इसी तरह से महायुग है जो कि 71, उनके हिसाब से 70 युग जो है हमारे मिट गए, फेड अवे, एंड दोबारा से फिर बने। तो 71 महायुग जो है एक मनवंतर के बराबर है, 14 मनवंतर एक कल्प के बराबर है। तो इस लाइक दैट बड़ा लंबा ये एक स्टडी है कैलेंड्रिकल, अगर हम लेते हैं। So Sen writes, Amartya Sen ने कहा, calendrical studies in which Indian astronomers located in China in the 8th century were particularly involved, made good use of progress of trigonometry that had already occurred in India by then, going much beyond the original Greek roots of Indian trigonometry.
The movement east of Indian trigonometry to China was part of global exchange of ideas. इसी तरह से हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री थी, जो कि कहा जाता है कि जिसकी रूट्स ग्रीक में थी, वो वहाँ पे ट्रांसफर हुई। और पहले अगर इसका हमारे को जया वर्ड था, तो वो बाद में जब अरब में ट्रांसफर हुआ या वहां पे अरब तक पहुंचा, तो इसमें साइन थीटा इस तरह से इसका रूप बना। The movement east of Indian trigonometry to China was part of global exchange of ideas that also went west around that time. Indeed, this was also about the time when Indian trigonometry was having a major impact on the Arab world. With widely used Arabic translations of works of Aryabhat, Varamihir, Brahmgupta and others. So in Aryabhat, Varamihir, Brahmgupta ने trigonometry के लिए जया साइन थीटा के रूप में काफी उनकी उपलब्धि रही, जिसको कि उन्होंने टाइम से जोड़ा, कैलेंड्रिकल एक्टिविटीज से जोड़ा, और वो अरब में गया और फिर यूरोप में पहुंचा। Same points out, Gautam Kutan-Zida produced the great Chinese compendium of astronomy, Cavian, Zheng, and 8th century scientific classic. He was also engaged in adopting a number of Indian astronomical works into Chinese. For example, Geoji Li, which draws on a particular planetary calendar in India, Navgrah calendar, is clearly based on classical Panch Siddhantika, produced around 550 CE Varamihir. इसी कनेक्शन में मैं आपको बताती हूँ कि जब जीसस क्राइस्ट, जब उनका गुड फ्राइडे मनाने के लिए भी उनको, क्योंकि कैलेंडर का ज्ञान नहीं था उस समय, क्राइस्ट जब क्रिश्चियंस को, तब उस समय उनके भी मन में ये आया कि हम लोग क्यों अलग अलग दिन अलग अलग देशों में ये मना रहे हैं, हम क्यों नहीं हम एक ही दिन कुछ फिक्स करें। तो इस तरह से, जैसे कि किसी भी चीज का जननी जो है, वो जब हमें जरूरत पड़ती है तभी हम उसको ढूंढते हैं, तो इस तरह से वो कैलेंडर की एक्टिविटी में आए, और उनका जीसस क्राइस्ट के जो अलग अलग पर्व थे वो एक दिन में फिक्स करने में वो सफल हुए इन्हीं कैलेंडर की एक्टिविटीज के हेल्प से। इट इज मेनली एन एल्गोरिथमिक गाइड टू कंप्यूटेशन एस्टिमेटिंग सच थिंग्स एज द ड्यूरेशन ऑफ एक्लिप्सेस बेस्ड ऑन द डायमीटर ऑफ द मून एंड अदर रेलिवेंट पैरामीटर्स। The techniques involved drew on methods that were established by Aryabhat and then further developed by his followers in India, such as Varamihir and Brahmgupta. क्योंकि ये मैंने जो डेट्स ली हैं, ये करीब 800 तक कवर हो जाती हैं, AD 800 AD तक। इसको मैं स्किप करूंगी, ये एक एग्जाम्पल मैंने पाई का लिया है। उसी तरह से ये एक लंबी कहानी है कि ऋग्वेद में हमें एकम, सद, विप्रा, बहुधा, ये सब एक द्वितीय, ये सब हमें मिलता है। शुल्भ सूत्र पे मैं आती हूँ। शुल्भ मीन्स रोप एंड सूत्र मीन्स फॉर्मूला। Thus, Shulb Sutra literally means formulas of or formulae of measurements, which basically means geometry. Their origin can be traced to Vedas, and scholars consider that these must have been known at least 8 centuries BC. The ideas presented therein seem to be motivated by considerations of forming yajna altars. Shulb Sutra contain what is called Pythagoras theorem, but not the proof. वेदांत की ओर मैं जाऊं तो हमारे 6 वेदांत हैं, जिसमें से एक है कल्प सूत्र, और कल्प सूत्र के आगे 4 पार्ट्स हैं, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र एंड शुल्ब सूत्र।
शुल्क सूत्र क्या, मैं यहाँ पे क्योंकि शुल्क सूत्र पे ही कन्फाइन रहूंगी. मीनिंग ऑफ शुल्क, कॉर्ड और रोप, शुल्क यूज्ड फॉर मेजरिंग साइज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, rectilinear or oblongs. For example, sacrificial fires and altar. Shulk Sutra deals with measurement of direction or construction of geometrical figures, combination and transformation of geometrical figures. तो शुल्क सूत्र जो है पहले इसमें क्योंकि ये वेदियों की स्टडी है, यज्ञ कुंड इसमें तैयार किए जाते थे एक खास एल्गोरिदम के तहत, एक उसमें टेक्निक इन्वॉल्व होती थी, एक फिक्स मेजरमेंट्स होते थे. ज्यादातर तो जो हवन करता है उसके बॉडी पार्ट्स ही यूनिट होते थे, चाहे उस समय राजा और जो लॉरिएट पर्सन्स होते थे वो लोग यज्ञ कराते थे और बड़ा एक आयोजन होता था. तो लेकिन वो सब एक फिक्स टेक्निक्स के तहत, ऐसे ही नहीं कि कोई भी साइज बनाया और वेदी तैयार हो गई और उसमें बैठ गए. उनका एक फिक्स ज्योमेट्रिकल साइज होता था, क्योंकि गोलाकार जो वेदी है वो कुछ और कन्वे करती है, जो स्क्वायर शेप में वेदी है वो कुछ और कन्वे किसी और अभिष्ट के लिए है, इच्छा के लिए है. तो लाइक दैट, इस तरह से तीन हमारी गारे पत्ते हवानीय, तीन तरह की अग्नियां हैं, मैंने अभी इसमें नहीं लिया है. फिर उसके अलावा कॉम्बिनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स. तो जैसे भूमि को समतल किया जाता था और उसके बाद में जो सही फिगर है, जितना हमें रिक्वायर्ड एरिया है उसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ हमें कॉम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन फिगर्स का करना पड़ता था. ऐसा हमारे शुल्क सूत्र से पता चलता है. मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कात्यायन शुल्क लिया है. शुल्क सूत्र हमारे 7 इस समय अवेलेबल हैं. बौधायन शुल्क सूत्र है, कात्यायन है, आपस्तंभ है, मानवा है, लाइक दैट. ऑल्टर्स की बात करें हम, अगर अग्निकुंड की बात करें तो दे मेड ऑफ परफेक्ट साइज एंड एरिया. मेजरमेंट्स उनके थे अरत्नी, मुष्टिका, अंगुला, ये सब पार्ट्स ऑफ आर्म हैं. इसी तरह से हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट के साइज भी उनके यूनिट्स थे, उनके मेजरमेंट के यूनिट्स थे. साइज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ यजमान हिमसेल्फ. यजमान मतलब कि जो हवन करने वाला होता था, जैसे राजा अगर हवन करवा रहे हैं यज्ञशाला. सिंबल ऑफ सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, कुछ जैसे आप स्वर्ग की प्राप्ति है या कुछ अभिष्ट इच्छा है, तीनों लोगों को जीतना है, लाइक दैट. नेम्स ऑफ ऑल्टर्स, कुछ एक नेम मैंने लिए हैं: द्रोणाचार्य चिति, गरुड़ चिति, अश्वमेध यज्ञ या चिति. टाइप्स इन कात्यायन शुल्क सूत्र 24 अग्नियों का जिक्र आता है. परफॉर्म फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिफरेंट मोंडेन एंड स्पिरिचुअल डिजायर्स. Hello, ma'am. You are not audible. Ma'am, am I audible to you? There is some connectivity problem. Sorry for interruption for all. Ma'am अभी rejoin कर रही हैं. There is some connectivity issues.
We are waiting for her. Share screen. Am I audible now? Yes, Hello. ma'am. Yes. Hello. Hello. Yes, ma'am. You are audible now. कुछ कनेक्शन ब्रेक हुआ था. जी जी जी. You can continue, ma'am. ओके. तो ये कुछ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सैंड ऑफ डिफरेंट क्ले है जो कि बिछाई जाती थी उस समय. 6th है पीसेस ऑफ स्टोन, देन 7th लेयर है ब्रिक्स की, देन 8th इज गोल्ड मेटल, देन समिधा वुड ऑफ सिलेक्टेड ट्रीज. तो मैंने यहाँ पे कुछ जैसे कि कात्यायन शुभ सूत्र में दीर्घ चतुरस्रण्य अक्षरण्य रज्जु स्त्रिंग मानी पार्श्व मानी च यत् भूते करोतुस्त दुभ्यम करोतीति क्षेत्र ज्ञानम. तो मैंने इसमें जो है आपको पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से वो लोग अप्लाई करते थे ये मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी है कि जैसे कि इस श्लोक का, इस मंत्र का मतलब है कि स्क्वायर ऑन AB एंड स्क्वायर ऑन AC इज सेम एज द स्क्वायर ऑन CB. आप लोग पहले ये तो जानते थे कि AB का स्क्वायर कर ले प्लस AC का स्क्वायर कर ले तो इज इक्वल CB स्क्वायर है. लेकिन वहां पे ये मिलता है कि पूरा CB के ऊपर जैसे पूरा स्क्वायर बनाया हुआ है हमारे पुराने टेक्स्ट में का अर्थ जो है. और ये लोग रज्जू यूज करते थे, पार्श्वमानी मतलब जैसे अब हम कंपास यूज करते हैं और कंपास को यूज करने के लिए आपने एक पॉइंट फिक्स किया, कंपास की एक जो पॉइंट है उसको आपने एक तरफ रखा और फिर जो पेंसिल वाली पॉइंट है उसको आप घुमाते हो. इसी तरह से रज्जू को इन्होंने एक तरफ बांधा और दूसरी जो साइड है रज्जू को उसको इधर उधर घुमाया. देन ये जैसे मैंने आपके पास में सेकंड कंडिका है कात्यायन शुभ सूत्र की, उसमें ये 11वां श्लोक लिया. उसके बाद में ये कर्णिम तृतीयेन वर्धे स्व चतुर्थे नामच चतुरश्री शोषेनन स विशेष इति विशेषः. ये तो पाई की वैल्यू इसमें एक्सप्लेन करी है, ये 13th श्लोक है. देन एक थर्ड कंडिका में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू स्क्वायर ऑन डायगोनल है करनी पे. जैसे कि इस दिस श्लोक इज इंटरप्रेटेड एज अ मार्क the length of a side of a small square on two opposite sides of a big one. Join the 2 points by a straight line. Now extend the chord whose length is same as the straight line from one of the 2 points to the base of big square. Now the large portion of the base will be the side of that square, which will be remaining area after subtracting the small square from the large. ये मैंने श्लोक का अर्थ लिखा है. इसमें जैसे कि एक हमारे पास में ABCD कोई स्क्वायर दिया हुआ है और हमें एक अपने कुछ एरिया उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे कुछ एरिया जो एक्सट्रैक्ट करना है, मान लो AE पे निशान लगाया, इसको हमने घटाना है निर्हवास. ये जैसे इनकी ये लैंग्वेज है सकर्णय निर्हवास. शंक निखाय पार्श्वमानिम कृत्वा पार्श्वमानी समिताक्षण्याम मतलब कुछ मेल मिला के तन्नो पल सरित समासे पच्छेदा सा करने, इस तरह से करने पे जो हमारे पास एक्सट्रैक्टेड एरिया आएगा. तो ये ABCD में से अगर हमने AE एक्सट्रैक्ट करना है तो E और E
पे हमने ई पे रज्जू रखी, ई और ई डैश है, तो हमने रज्जू का दूसरा हिस्सा या अपनी कंपास का उसको ऐसे करके हम नीचे ले आए, तो वो जो जिस साइड पे वो कट करेगा, तो ये आप देखो कि ये वाला अगर एक ये ट्रायंगल बन गया तो हमारे पास में एक ये इतना पूरा एक स्क्वायर हम इस साइज का बना सकते हैं, एक इस साइज का बना सकते हैं, और अगर दो को ऐड किया है तो वो स्क्वायर ऑन ई डैश रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से कुछ एक्सट्रैक्शन, और ये नया एरिया जो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया था हमारा, वो ये इस रूप में आ गया है EFGH। बड़े अच्छे से एक्सप्लेन्ड है ये जो मंत्र है, इसको अगर आप स्टडी करते हो तो इसका अर्थ ये पता चलता है, बड़े सही से समझ आता है। तो इस तरह से मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ए रेक्टेंगल, इसी तरह से एक रेक्टेंगल को भी रेक्टेंगल को भी चेंज किया गया है एक स्क्वायर में, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। इसी तरह से ट्रांसफॉर्म लेंथी रेक्टेंगल इनटू ए स्क्वायर, एक लंबा रेक्टेंगल है उसको भी एक स्क्वायर के एरिया के बराबर इसको रिड्यूस किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। इस तरह के श्लोकों में अर्थ पता चलता है। तो व्हाट अ सरप्राइजिंग थिंग। अति दीर्घच्छेद ऋंग मान्या पच्छिद्या पच्छिदे समासेन समस्य शेषम यथा योग मुपहंस रे द्वितीयेक समासः। तो इस तरह से मैंने फिर आगे थोड़ा सा मैंने ये कवर किया है आपका कि यजना डिफाइंस सेक्रीफाइस ऑफ ईगो, material attachment and dedication for the social welfare by repeated utterance of idam namam, that is, it does not belong to me. In the contemporary society, the modern living style and physical comfort have created a lot of changes which has brought the man to the path of his endless desires. This results mental and physical health problems. Today there is a big question before humanity is how to protect itself and rest of the world from the incurable effects of ever deteriorating environment. The rapid urbanization, deforestation and non-biodegradable waste, air and water pollution have sabotaged the human, animal and plants life. द ओजोन डिप्लीशन। तो इस तरह से आप सामने अभी आपने 2 साल पहले स्टूडेंट्स आपने कोरोना का टाइम देखा आपने, और क्या क्या प्रॉब्लम्स डिजीजेस देखी। मेडिसिनल स्मोक ऑफ यजना रिमार्केबली रिमूव्स ह्यूमन पैथोजेनिक microorganisms. The sublimation and vaporization of ingredients of Havan Samagri in an inverted pyramid shaped Yajna Kund provide vast amount of medicinal and therapy benefits. However, smoke out of yajna functions as a colloidal vehicle for diffusion of volatile aromatic substance, क्योंकि वो सुगंध फैलती है और वो कहीं जो फायदा ही पहुंचाती है। Rigved describes that inhaling of smoke generated by using different herbs in yajna fire is beneficial. Rigved, Ayurved, Charak Samhita elaborates uses of medicinal plants, fumes of yajna for preventing and curing various diseases. The ability of smoke to purify air maintained up to 24 hours in a closed room. The research shows that smudging, that is burning of Havan Samagri in a room for an hour, reduced airborne bacteria. That is burning of Havan Samagri in a room for hour reduced airborne bacteria by 94%. ये शायद मैथमेटिक्स से डेविएट हो रहा है ये वाला मेरा
मैं जो कुछ आपके सामने रख रही हूँ, लेकिन वाकई में हम एक एस्पेक्ट उठाएं तो अब तो बुक्स भी बहुत आ गई हैं और बहुत एस्पेक्ट हैं जो कि डिस्कस करने के लिए, जिसके लिए कि स्टूडेंट्स उस पे विचार करें, उनको कोई भी टॉपिक उठाएं, चाहे कैलेंडर का है और एक तंत्र संहिता है जो कि अभी TIFR के रामा सुब्रमण्यम ने उस तंत्र संहिता पे बहुत सारी उसमें उन्होंने पूरा ट्रांसलेट किया, उसको लिखा। तो इस तरह की बहुत बुक्स हैं, बहुत मटेरियल है जिसको कि आप लोग अगर इंटरेस्ट लो और पढ़ो तो बहुत सारी चीजें आपके पास में है। जैसे वेरियस रिसर्चेस हैव रिवील्ड दैट शेप्स एंड साइजेस ऑफ ऑल्टर्स affect the effectiveness of fumes produced by different medicinal plants for different diseases. We have witnessed during COVID pandemic, Ayush Kadha was recommended by Ayush Ministry of Government of India. The use of fumes of camphor, Google, etc. was prevalent. The effectiveness of medicinal properties of these herbs can be increased by the use of scientific shape and size of altars practiced by ancient people. तो मेरा आज की टॉक में मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए यही तैयार किया और ये मैंने कुछ एक रेफरेंसेस भी दिए हैं, आप लोग देख सकते हो, स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हो। और ये जो है बीच में ये किम प्लोफकर है, इनकी बुक भी है एंशिएंट मैथमेटिक्स पे, और ये मैडम अमेरिका की यूनिवर्सिटी में है, US में, लेकिन यहाँ की स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। और आप देख रहे हो कि इनका पहनावा भी बिल्कुल इंडियन स्टाइल है। हम लोग मिले थे 2010 में, ICM हुआ था, कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स में किम प्लोफकर मैम से मैं मिली। ये मेरे गुरुजी हैं, अब ही इज नो मोर, डॉक्टर SL सिंह सर, प्रोफेसर SL सिंह सर। इनका काफी इन्होंने काम किया इसमें एंशिएंट मैथमेटिक्स के ऊपर। ये मुझे याद आ रहा है कि CC की हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ये वाइस चांसलर हैं, और सर ये एंशिएंट मैथ्स पे भी सर ये काम करते थे, और ये आप मुझे देख रहे हो। थैंक यू। किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो? Yes. Online or offline participants are requested to ask any query. Yes, ma'am. Myself at the. You can come here. You can come here. Acha, yes, ma'am. हेलो मैम, आवाज इधर आइए, Hello. यहाँ पर आवाज आ रही है मैम? कम है, थोड़ा स्लो है आवाज। कैमरा है, इधर आइए। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है, आपने अभी जो लेक्चर दिया है हाँ जी। जी, आपने सुलभ सूत्र पर आपने बताया अभी काफी कुछ, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसमें वर्कशॉप का टॉपिक है न्यू डायमेंशन है वर्कशॉप का जो टॉपिक है। हम्म तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें न्यू डायमेंशन क्या क्या हो सकती है, मतलब आगे क्या काम हो सकता है सुलभ सूत्र से आगे? हाँ, शुभ सूत्र की अभी तो ट्रांसलेशन ही बाकी है, और उसके बाद में जो है, मतलब सबसे बड़ी चीज है कि हम उनकी जो टेक्निक थी, उनके एक फिक्स एल्गोरिदम्स थे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो उन्होंने सूत्र दिए उसमें आपकी एक टेक्निक इन्वॉल्व है। कुछ ऐसा नहीं है कि हैफाजर्ड वे में उन्होंने बस ये बनाया आकृतियां और कर ली। आप इसको पढ़ोगे तो पाइथागोरस से और आगे आप कुछ फाइंड आउट कर पाओगे, सोच पाओगे, और इसी तरह से आप कुछ एल्गोरिदम्स इसको देख के डेवलप कर सकते हो अपने। और इसमें तो अभी अर्थ होना बहुत बाकी है, काफी कुछ। तो एक ये विधा है, एक विधा है, और अभी जो हमारे आज की ये
इसका मेन जो सेंट्रल आइडिया है न्यू डायमेंशन इन वैदिक मैथमेटिक्स में, जो सेंट्रल आइडिया है वो यही तो है कि पुरानी विधा को और नए नॉलेज सिस्टम के साथ में हम अटैच करके हम स्टूडेंट्स के लिए, हम आगे वाली जनरेशन को कुछ दे पाए। जी धन्यवाद मैम। और मैं इसी के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राकेश भाटिया सर को, जो इस सेशन को चेयर कर रहे हैं। सर आए और मैडम को वोट ऑफ थैंक्स दें। नमस्कार सबको। डॉक्टर निधि हांडा जी को भी सादर नमन। और मेरा परिचय उनका 2019 से है, जब हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी वैदिक मैथमेटिक्स की, हमने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से, तो वहां पर मुलाकात हुई थी दिल्ली में, और उससे पहले भी कुछ क्वेरी थी। तो डॉक्टर निधि हांडा जो है गुरुकुल कांगड़ी से, जो कि वहाँ संस्कृत का बहुत बोलबाला है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने विषय रखा है और इनका ये जो रिसर्च का भी विषय है, शायद इन्हीं में आपने पीएचडी की है कात्यायन पे, शायद अगर मैं रॉन्ग ना हो तो, है ना मैडम? तो इनके और इन्होंने बहुत काम किया है वैदिक मैथमेटिक्स पे। बुक भी इन्होंने मेरे को एक भेजी थी, और रिसर्च पेपर भी इनके अवेलेबल हैं इसके ऊपर, अगर आप देखना चाहें तो। मैंने देखे हैं कुछ रिसर्च पेपर। तो आज जो है आप यहाँ पर जो विषय रखा है बौधायन नंबर्स के ऊपर, जो कि 800 बीसी से ऊपर का जो ये विषय है, और उसमें आज के समय में जैसे विषय आया है कि न्यू डायमेंशंस क्या क्या है, तो ये बहुत ही अच्छी ढंग से इन्होंने कहा कि भी न्यू डायमेंशंस ये है कि हमारा जो प्राचीन साहित्य है, हमारा जो वेदों में निहित है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी एक न्यू डायमेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो हम लोगों को इस और सभी को जो है काम करना चाहिए, इसके ऊपर हमें अध्ययन करना चाहिए। ये तो देखिएगा हमारे जो ये एक्सपर्ट हैं जो आज के इन्होंने लिखा है, इनके ऊपर रिसर्च पेपर लिखे हैं, हमें इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, इनको अध्ययन करने की जरूरत है। जैसे चिति की बात आ रही थी, यहाँ पर रसोमे की बात आ रही थी, और बहुत से इन्होंने इस प्रकार की डायमेंशन की बात की है। तो मेरा निवेदन ये भी रहेगा मैडम से कि भविष्य में जैसे हम एनसीईआरटी की किताबें लिख रहे हैं, और वहाँ पर जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आ रही है, विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आ रही है, तो ये जो है इसका क्रम किस प्रकार से हम बना सकते हैं, बौधायन प्रमेय का प्रयोग, तो मेरा इनसे निवेदन रहेगा। और इनका जो बहुत अध्ययन है इनका, और इन्होंने पुस्तकें भी काफी लिखी है, तो आज जो है बहुत ही फ्रूटफुल विषय रहा है। एक न्यू हमारे अंदर जो सोचने के लिए मजबूर किया है कि इस प्रकार की न्यू डायमेंशन में हमें ये जो है सामग्री डालने की आवश्यकता है। तो थैंक यू डॉक्टर निधि होंदा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रस्तुति यहाँ पर दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे शोधार्थियों के लिए और हमारे नए विद्यार्थियों के लिए और हमारे जो पीएचडी के जो शोधार्थी हैं उनके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी। हेलो, हाँ सर, मैं, हेलो, आवाज नहीं आ रही। मैम जी मैम कंटिन्यू प्लीज। हाँ, मैं ये जो अभी सर की बात कंटिन्यू करते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी तो केवल हमने 2000 सन की बात करी है, या 2000 से पहले 3000 सन की बात करी है, तो हमारा तो इतिहास कहीं जो है इससे कहीं कहीं बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जी 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 थैंक यू। और मैं मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर शिवराज सर को कि मैडम के लिए सर कुछ शब्द कहें, और साथ ही साथ इस वर्कशॉप के बारे में भी आज के सेशन को कंप्लीट करना चाहेंगे। नमस्कार मैम, मेरी आवाज आ रही होगी आपको? जैसे मैंने बताया था, फिर से उसी बात को स्टार्ट करते हुए, जैसे भटिया सर का और अनिल सर का और शिक्षा संस्कृति का कंट्रीब्यूशन है इस विभाग में वैदिक मैथमेटिक्स को शुरू करने की। वैदिक मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल था यहाँ पे शुरू करना, लेकिन न्यास के प्रयास रहे, और
राकेश भाटिया जी लगातार यहाँ पे आते रहे, अनिल जी लगातार यहाँ पे आके लेक्चर्स लेते रहे, तो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह से डॉक्टर निधि हांडा मैम का भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। हमेशा बहुत पास हैं, तो किसी भी लेक्चर के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, प्रोजेक्ट वाइवा के लिए हमेशा मैडम अवेलेबल रही हैं। और मैं जानता हूँ कि सारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने पर्सनल सुना है, एक एक प्रेजेंटेशन को पूरे इंटरेस्ट के साथ सुना है, अप्रिशिएट किया है, और बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी दिए हैं। इसमें बहुत सारी पुस्तकें मैडम ने हमें गिफ्ट की हैं यहाँ पे जो विभाग में हैं। और SL सिंह जी एक बहुत बड़ा नाम थे, मैडम उन्हीं की स्टूडेंट हैं, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और ICM हैदराबाद में मैम गई और इन लोगों से मिला है। तो बेसिकली मैम का इंटरेस्ट और रिसर्च एरिया यही है, वैदिक मैथमेटिक्स। जैसे जैसे अब थोड़ी सी अनुकूलता है, तो मुझे लगता है ऐसे सीनियर रिसर्चर्स को सामने आना चाहिए, जिससे और नए स्टूडेंट्स को एक प्रेरणा मिले। जब भी कुछ स्टूडेंट कोई शोध करने में रुचि रखते हैं, तो मैम से हम गाइडेंस लेते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स दी जाए, किस तरह की चीज़ों पे काम किया जाए। तो आप भी इस विभाग से बहुत एसोसिएट हैं, और हम लोगों को लगता है राकेश भाटिया जी, अनिल जी और निधि मैम सब जैसे इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं। और न्यास की प्रेरणा से सारा कार्य हुआ है। न्यास के जो हमारे भाई जी हैं, अतुल कोठारी जी, संजय शर्मा जी हैं हमारे इस समय जो प्रांत के संयोजक हैं, और तिवारी जी, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इस सेंटर के लिए रहा है। तो सबके लिए धन्यवाद। आगे। थैंक यू सर। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी न्यास शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से दिल्ली प्रांत सह संयोजक हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, किरोरी मल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ ही साथ विनोद गोस्वामी जी भी दिल्ली प्रांत से हमारे बीच में उपस्थित है न्यास की उपस्थिति की। सर आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यशाला में आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत आशान्वित करती है हमें आगे की कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में आज का सत्र हम इस सेशन में के साथ ओवर करना चाहेंगे, और कल के लिए आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारा जो सेशन रहेगा, पहला लेक्चर डॉक्टर अनिल कुमार जी का रहेगा, फिर सेकंड सेशन हमारा रहेगा डॉक्टर योगेश चांदना जी के साथ, देन अनुराधा मैडम हमारे बीच जुड़ेंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और लास्ट सेशन डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी जो कि वैदिक गणित के संरक्षक हैं, पूरे जो भारत हमारा है उसके पूरे न्यास की तरफ से वैदिक गणित संरक्षक हैं, वो हमारे बीच में जुड़ेंगे। और इसी के साथ में हमारी ये वाली कार्यशाला को हम समापन की ओर ले जाएंगे। तो अभी सभी को आमंत्रित करना चाहेंगे चाय के लिए, और वर्चुअली भी मैं सभी को इनवाइट करना चाहूंगी। जैसा हमने एक रूल बनाया है कि हम वर्चुअल भी सबको इनवाइट करेंगे, चाहे वो लंच हो रहा है, चाहे चाय हो रही है, टी ब्रेक हो रहा है। तो आप सभी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स आर मोस्ट वेलकम फॉर अ टी। कल की टाइमिंग्स हमारी 11 बजे से स्टार्ट होगा सेशन। कल हमने थोड़ा सा लेट किया है सभी को जी। तो इसी के साथ में हम इस सत्र को समापन की ओर ले जा रहे हैं। धन्यवाद। सोनिया जी टी के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, all teachers. Thank you, ma'am. थैंक्स मैम, थैंक्स मैम। बहुत सारी परेशानियों से हम लोग बाहर निकल आते हैं, तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें गाइड करते रहें। आपका सुपरविजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू मैम।